एक शहर जिसे धरती की सबसे पवित्र जगह कहा गया है, यरूशलेम। यहूदियों के लिए यहीं बना था उनका पहला मंदिर। ईसाइयों के लिए यहीं यीशु मसीह को सूली दी गई थी और मुसलमानों के लिए यहीं से पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे। तीन धर्म, तीनों की आस्था, लेकिन एक ही जगह। यहूदियों के लिए टेंपल माउंट, मुसलमानों के लिए हरम अश शरीफ और ईसाइयों के लिए होली साइट। एक ही जमीन, तीनों का दिल। करीब 1967 साल ईसा पूर्व राजा सुलेमान ने यहाँ फर्स्ट टेंपल बनवाया था, लेकिन 586 साल ईसा पूर्व बेबीलोन के राजा ने उसे तोड़ दिया और फिर बना सेकंड टेंपल, और 17वीं ईस्वी में रोमनों ने इसे भी मिटा दिया। सिर्फ एक दीवार बची, द विलिंग वॉल, विलाप की दीवार। जब मंदिर नष्ट हुआ था तो यहूदी लोग इस दीवार के पास आकर रोते हुए अपने भगवान से प्रार्थना करते थे। यहूदियों के लिए आज भी वह सबसे पवित्र जगह है। बाद में ईसाई धर्म के उदय के साथ यरूशलेम ईसाइयों के लिए भी बहुत पवित्र बन गया, क्योंकि यहीं यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और कहा जाता है यहीं पर उनका पुनर्जीवन हुआ। फिर 7वीं सदी में इसी पहाड़ी पर बनी अल अक्स मस्जिद, इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह। यहाँ से पैगंबर मोहम्मद जन्नत की यात्रा की थी। एक ही जगह लेकिन तीनों धर्मों का दावा, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा झगड़ा जो आज भी खत्म नहीं हुआ। जब आस्था राजनीति से टकराती है तो लड़ाई शुरू होती है। 1948 इजराइल बना। हजारों फिलिस्तीनी अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। इजराइल ने पूर्व यरूशलेम पर कब्जा किया और तभी से लड़ाई दुनिया की सबसे पुराना संघर्ष बन गई। लेकिन अब ये लड़ाई जमीन की नहीं, अब राजनेता ने इसे अपना हथियार बना लिया है। जब सत्ता खतरे में आती है तो कुछ लोग इंसानों की जान से खेलकर अपनी कुर्सी बचाते हैं। 7 अक्टूबर 2023 हमास का हमला, 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए। इजराइल ने I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving. हो शांति हो या कोर्ट केस, ट्रंप मस्ट ट्रेंड। उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले तो उन्होंने इजराइल की हर एक चीज का समर्थन किया, फिर अचानक पीस प्लान लेकर आ गए।
लेकिन उनका पीस प्लान क्या था? एक तरफ तो इजराइल को पूरा सपोर्ट दे रहे थे, दूसरी तरफ शांति की बात कर रहे थे। ये उनका पुराना फॉर्मूला है, दोनों तरफ बोलो, दोनों तरफ वोट बैंक बनाओ। ट्रंप के सबसे बड़ी हरकत क्या थी? उन्होंने साफ कहा, इजराइल को खत्म करना होगा युद्ध, लेकिन पहले हमास को खत्म करो। यानी जब तक हमास है तब तक जंग जारी रहेगी। और हमास को खत्म करने में कितने और बच्चे मरेंगे, इस सवाल का जवाब ट्रंप के पास नहीं था, क्योंकि ट्रंप को चाहिए था सिर्फ हेडलाइन, ट्रंप सोल्व्स मिडिल ईस्ट क्राइसिस। उनके लिए गजा कोई इंसानी त्रासदी नहीं। तो सच क्या है? सच यह है कि नेतन्याहू के लिए ये जंग सत्ता बचाने का जरिया थी, हमास के लिए ये जंग राजनीतिक रहने का जरिया थी, और ट्रंप के लिए ये जंग चुनाव जीतने का जरिया थी। लेकिन गजा के बच्चों के लिए, जो अपनी परिवारों की लाशों के बीच बैठे हैं, ये जंग जिंदगी और मौत का सवाल थी। हर रॉकेट के पीछे कोई सियासी फायदा है, हर बम के पीछे कोई हथियारों का सौदा है, और हर कॉन्फ्रेंस के पीछे कोई चुनावी एजेंडा है। शांति तभी आएगी जब सत्ता की जगह इंसानियत बोलेगी। और अब आप टीवी पर क्या देख रहे हैं? ब्रेकिंग न्यूज, पहला चरण पूरा हुआ, बड़ा समझौता हुआ, लोग सड़कों पर खुशियां मना रहे हैं। लेकिन क्या सच में कुछ बदला है, या सिर्फ एक नया एक्ट शुरू हुआ है? आज जो खबर नहीं दिख रही, जो सच्चाई छुपाई जा रही है, वो यह है कि हजारों लोग अब भी बेघर हैं, बच्चों के स्कूल अब भी खंडर हैं, अस्पताल अब भी बर्बाद पड़े हैं, पीने का साफ पानी अब भी नहीं है। ये पहला चरण पूरा नहीं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा का पहला चरण शुरू हुआ है। ये सब पहले भी हो चुका है। यही सिलसिला है, जंग, सीज फायर, रिकंस्ट्रक्शन, तनाव और फिर जंग। आज नेताओं के हाथ में हैंडशेक की तस्वीरें, और कल उन्हीं हाथों में होंगे नए हथियारों के कॉन्ट्रैक्ट। मीडिया आपको दिखाएगा पीस डील, लेकिन नहीं दिखाएगा उन लाखों लोगों के आंसू जिनके घर, परिवार, भविष्य सब कुछ छिन चुका है। तो अगली बार जब आप टीवी पर शांति समझौता देखें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या ये सच में शांति है, या सिर्फ एक अगली जंग की तैयारी? सरकारें बदल सकती हैं, नेता बदल सकते हैं, लेकिन ये खून का खेल वहीं का वहीं रहता है। शांति तभी आएगी जब हम इस खेल को पहचानेंगे और सच्चाई को नाम से पुकारेंगे, क्योंकि जब तक सत्ता की भूख है, तब तक दुनिया में शांति सिर्फ एक सपना है।